Assalamu alaikum. Hi student. Today we discuss about power. Numerical question related about the power, and we know that the formula of power is work per unit time is called power. Let us start the question number 6.6, and the statement of question 6.6 is a motorboat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. What is the given data? I repeat the statement of the question. A motorboat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. So given data is speed V is 4 meter per second, and the given force F is 4000 Newton. Required is power. We know that formula of power is work per unit time. We know that power is equal to work per unit time. Now power P is equal to W by T. And if we try to understand the data of W and T is not given, the value of W is not given in this question, and the value of T also not given in this question. Both value W and T are missing in this question. And we know that the formula of power is work per unit time. So we apply the formula of work. We know that work is the product of force and displacement. So we put the value of W, F multiply S over T. Now we solve it. F multiply S over T. And if you try to understand from the previous chapter number 2, we read about speed. We read about speed V. Distance covered per unit time is called speed. V is equal to S over T. So we put the value of S over T is V. Now given formula of the power, modified form of the formula of power is F multiply V. Now both values are given. The value of F force is also given, 4000 Newton. Multiply speed, the value of speed is also given. 4000 multiply 4 is 16,000 watt,
and we know that 1000 is equal to 1 kilo. So 1000 watt change into 1 kilowatt. So power is equal to 16 kilowatt. I hope you understand this question. Now for Urdu medium students, I change the language English into Urdu. इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो कुछ इस तरह है। अ मोटर बोट मूव्स, एक कश्ती जो हरकत कर रही चल रही है एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर फी सेकंड की स्पीड से चल रही है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन, इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर 4000 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। उस कश्ती को पानी के अंदर चलाने के लिए 4000 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, जबकि 4000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, वो इंजन जो छोटी कश्ती के अंदर लगाया हुआ है जिसकी वजह से 4000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने के बाद वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड निकाल रहा है, उस इंजन की पावर हमने मालूम करनी है। तो इस गिवन डाटे के अंदर क्वेश्चन के दी गई स्टेटमेंट के अंदर स्पीड गिवन है v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, फोर्स F गिवन है 4000 न्यूटन। इसमें हमने पावर को मालूम करना है, रिक्वायर्ड मालूम क्या करना है, पावर को मालूम करना है। पावर का जो जनरल फार्मूला हमारी बुक के अंदर मौजूद है वो है वर्क पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, पावर बराबर है वर्क बटा टाइम वक्त। तो अब उसका हमने फार्मूला लिखा, पावर इज इक्वल टू W बटा T, पावर इज इक्वल टू, अब वर्क का जो फार्मूला है, जो हमने फार्मूला W और T लगाया, इस जगह पे वो डाटे के अंदर कीमतें नहीं अप्लाई हो रही। F और V जो वैल्यूज के अंदर क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन है, ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट यहाँ अप्लाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि हम इस फार्मूले की मॉडिफाइड फॉर्म को ही निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि हम इसकी मदद से कैसे जो है वो वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसी यूनिट के अंदर पढ़ा था कि जो वर्क है वो है फोर्स जर्ब तय करता फासला, F जर्ब S बटा T। सो हमने अप्लाई किया F मल्टीप्लाई S और T। अब यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी तय करता फासला बटा टाइम वक्त, ये बराबर होता है स्पीड के। तो स्पीड का हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो इसका मतलब S ओवर T की जगह हम लगा सकते हैं V। अब P बराबर F जब V बन गया, F की कीमत भी मौजूद है, F की कीमत है 4000 और V की कीमत 4 मीटर फी सेकंड वो भी मौजूद है। उन दोनों कीमतों को अप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये 16000 वाट जवाब आ गया। अब क्योंकि 1000 1 किलो के बराबर होता है, तो 1000 का 1 किलो बनाया तो ये बन गया 16 किलो वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी और इस क्वेश्चन को बार बार करके देखें। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर या टेस्ट सीरीज़ के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं। क्वेश्चन बार बार बोर्ड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो रहा है, इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार करें। तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें जी। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।